safety and well-being of our ecosystem is concerned. With rampant urbanization, environmental degradation, and grave consequences of climate change, an overall path correction has become imperative to the existence of all living forms on Earth. Should we continue with the abuse of our precious natural resources? Should we use technology and innovation to conserve them? Can we reduce energy usage with a mindful approach and renewable sources? Dr. Prem Jain anticipated many such challenges we are facing today way back in the 70s. Over half a century of dedication and tireless efforts, he thought and spoke a language that was way ahead of its time. His passion and commitment to his Janmabhoomi and to his own mother ran equally deep. From my earliest childhood, it is ingrained in me that truth will always win, but because Satya is there. She also gave us the love of all the teachers, trees and plants, the lesson of non-violence. Ever since my childhood, I have always respected that all life forms are equally important. The last 10 years saw the culmination of his efforts by remarkably shaping the Green movement in India, and his countless admirers began to refer to him as father of green buildings in India. The Green Revolution started as the foundation of his legacy. In 2018, Prem Jain Memorial Trust was conceived to carry on his mission and founded upon his values, ideals, and vision of a greener Bharat. Today, the Trust enjoys guidance of the best minds of the industry, champions of sustainability, corporate change makers, and academicians. PJMT is set on its journey to create, establish, and maintain sustainability innovations through education, recognition, and rewards that nurture future generations. The best gift you can but then, wherever they are, they will be able to earn very much. Each year begins with the Harit Prem Bharat Mahotsav, a week-long celebration of sustainability, and our annual flagship event, Prem Jain Memorial Address. The Trust organizes a spectrum of green initiatives which fill the week of January 26th, Dr. Jain's birthday week. The Mahotsav is celebrated across the country with immense enthusiasm by Green Crusaders and our partner institutions through an array of sustainability-driven initiatives and activities. Having deep roots with the Indian Green Building Council, the Trust has worked in tandem with IGBC and its chapters. PJMT takes great pride in partnering with esteemed partner societies, corporate leaders, and premier universities across India, working closely with the common mission of creating a greener Earth through the year. The Trust is a catalyst for sustainable research and development, sharing innovations and creating a global platform for exchange of thoughts and ideas to nurture future green ambassadors. PJMT has organized more than 300 green initiatives during Harit Prem Bharat Mahotsav in association with esteemed partner societies, corporates, and institutions across India, and arranged over 300 online sessions by distinguished speakers and industry change makers on sustainable built environment, with participation of more than 5,000 students and working professionals. At this edition of Harit Prem Bharat Mahotsav, we invite you to join this green revolution, to build a brighter tomorrow and change the world we will leave behind for our children. If we can change the way we think about things, maybe what we build will change the world. Thank you. This is the second time I'm coming over here to the Access College.
लास्ट टाइम जब मैं आया था कुछ बच्चे थे यहाँ पे दोबारा हैं Raise your hands. अभी हम जो ये डिस्कशन करेंगे हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो दोनों में ये है अभी हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं ये वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग वीक है और वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग वीक जो है एक जैसे हमारी इंडिया में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है IGBC इसका चैप्टर भी हमारे एक्सिस कॉलेज का ऐसे ही वर्ल्ड में वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है जिसमें 60+ नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं एवरी ईयर 1 week of September usually it's 4th week of September इस साल 3rd week of September को वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग वीक मनाते हैं और this is the message from World Green Building Council that COP27 की और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं उसमें भी वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल अब यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि हम आप अपकमिंग इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हैं यहाँ पर तो हम ये समझें कि हमारा इंजीनियरिंग का जो ये जर्नी है जो आप लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया एडमिशन होने के बाद आप इंजीनियर फील्ड में आएंगे तो आपकी जर्नी कैसे बिल्ट एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है आप इससे जुड़ने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें आज से 4 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे और कैसे आप सोसाइटी को या नेचर को इफेक्ट कर रहे हैं दिस इज द मैसेज जो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम के जरिए आपको देना चाहते हैं आप लोग हैं यहाँ पे कुछ आपके दोस्त नहीं है मैं चाहूँगा कि आप फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से और सहपाठियों से भी बात करें और उनको बताएं कि दिस इज द मैसेज दिस इज द वे वी शुड बी प्रोटेक्टिंग आई एम आल्सो कंसल्टेंट टू कानपुर नगर निगम वर्किंग ऑन क्लीन एयर मैं आप लोगों से एक छोटा सा आपको एक क्लू देना चाहूँगा मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ पर मैं एट द सेम टाइम नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान जो कि बाहर की हवा साफ करने का एक प्लान है और उसमें 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं 132 शहर ऐसे हैं देश के जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया जहाँ पे अभी हवा खराब है आने वाले समय में हवा खराब है और टॉप 10 में कानपुर तो उन शहरों की आउटडोर एयर क्वालिटी को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर कुछ डिस्कशंस है मैं एज ए सिविल इंजीनियर आउटडोर एयर क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स या ट्रांजिशनल स्किल्स तो आप ऐसे ना समझे कि हम सिविल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है तो हमने सिर्फ अपनी कोर इंजीनियरिंग में ही काम करना है आपको अपनी कोर इंजीनियरिंग से आगे बढ़ के ग्रीन बिल्डिंग्स है सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट है आज हमारे साथ दिनेश मलिक सर हैं आपको वाटर के फील्ड के बारे में बात करेंगे हम इंजीनियरिंग करने के बाद जो अपने कैरियर के चुनाव की ओर आप आगे जाएंगे तो आप ये देखिए कि आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में देश कहाँ जाने वाला है इस समय इंडिया में जो सबसे ज्वलंत समस्याएं हैं या सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिनको इंजीनियरिंग इंटरवेंशन की जरूरत है वो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल जिसमें नेशनल मिशन क्लीन होगा ग्रीन ऑफ रिवर्स में काम हो रहा है और काफ़ी सारी सिविल इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी ऐसी है कि जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है उनको इंजीनियर्स की जरूरत है हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे कोई बहुत बड़ा सेक्टर है ऐसे ही क्लीन एयर पे पिछले IIT कानपुर के प्रोफेसर उन्होंने लास्ट वीक बेंगलोर में स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले दशक में 10 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इंजीनियर्स को क्लीन एयर पे काम वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो ये सेशन होगा ये आप लोगों के लिए आई ओपनर होगा एक तरीके से आप ये देखिए कि खाली हमें इंजीनियरिंग ही नहीं देखनी है आर्किटेक्चर ही नहीं देखना इसके बियॉन्ड सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट के ग्रीन बिल्डिंग्स या इसमें से कोई टॉपिक्स है उनमें कैसे आप अपनी कैरियर की प्रोफेशन कर सकते हैं तो हमारा प्रेमचंद मेमोरियल ट्रस्ट का आपने फिल्म भी देखी दिस इज द मिशन एंड दिस इज द विजन ऑफ प्रेमचंद मेमोरियल ट्रस्ट टू एस्टैब्लिश अ फाउंडेशन इन मेमोरी ऑफ लेट डॉक्टर प्रेमचंद हमने जो प्रेमचंद मेमोरियल ट्रस्ट है यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम लोग काम करते हैं और ये ऑल वॉलंटियर वर्क है वी कम हियर एज वॉलंटियर्स एंड टॉक टू देम एट होम
इनिशिएट अवेयरनेस ऑन एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल बिल्ड एनवायरनमेंट। आप लोग ये पढ़ सकते हैं, इधर हम उसके ऊपर मेमोरियल एड्रेस लेक्चर सीरीज होती है। हम यहाँ पे आप लोगों को ये मैसेजेस आते हैं, यहाँ पे एक IGBC का ग्रुप भी एक्सेस कॉलेज का मैं चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो नहीं है उसमें आप लोग आए, स्टूडेंट्स आए, और ये हमारे प्रोग्राम्स को आप अटेंड करें। एवरी मंथ डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर सीरीज होती है, TLS होती है, और अभी जैसे ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ से आप बच्चे काफ़ी कुछ इसको अपने कैरियर प्रोग्रेशन को लेके भी समझ। और ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का मिशन, दिस इज द सेम मिशन स्टेटमेंट टू गिव knowledge on sustainable built environment to the system. अब theme of green world green building week है, building for everyone, this year की थीम है, और ये कैसे हमारे sustainable development goals के साथ जुड़ रही है मैं आपको बताऊंगा। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, building for a planet, building for communities, building for economics। अब building for planet में हम 4 SDGs को टच करते हैं, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, पार्टनरशिप फॉर द वर्ल्ड। क्लाइमेट एक्शन की बात करूँ, हम जब बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन एमिशंस कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जो एमिशंस हवा में आ रहे हैं, और कानपुर की अभी एनफोर्समेंट स्टडी जो है उसमें कानपुर में रोड डस्ट है, आप सड़क के ऊपर जो धूप देखते हैं जो कि आपकी ड्रेन्स को भी चोक करता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को भी चोक करता है। आपकी कंस्ट्रक्शन जब आप करते हैं वहाँ से PM 2.5 PM 10 जो निकल के सड़कों पे आता है या हवा में आता है, हमारे फसलों को खराब करता है। ये छोटे छोटे नुएंसेस हैं, मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स, ट्रांजिशनल स्किल्स। आप इन बातों को, ये मेरे इन 2 शब्दों को लेके गूगल करें, आप देखिए आप कहाँ इंटरेस्ट है आपको। कोर इंजीनियरिंग के बियॉन्ड द करिकुलम व्हिच इज बीइंग टॉट टू यू एट एक्सेस कॉलेज, आप उनको जब पकड़ेंगे, मैं 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी कंसल्टिंग बोर्ड में हमारे को इंटर्न्स की जरूरत है, सिविल इंजीनियरिंग इंटर्न्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटर्न्स, जिनके पास थोड़ी सी एयर क्वालिटी सेंसर्स के ऊपर कुछ नॉलेज। हम लोग स्ट्रगल करते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं। एयर क्वालिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। और जो मैंने आपको कहा एज ए इंजीनियर, आप सोचिए वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का जो ये हमारा जो मिशन है जो हम आपके साथ लेके आए हैं, ये PPT यही पे है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये PPT जो स्टूडेंट देखना चाहें आप उसके बाद देखिए। आप एक गोल को SDG के गोल के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए एज ए इंजीनियर, क्या हम इसमें से कोई चीज़ हमारी पैशन है, इंटरेस्ट है, हम लेके जा सकते हैं। बिल्डिंग फॉर कम्युनिटीज, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हमारा ये टॉपिक जो है आज का। इसके बाद वाटर का है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ये 6 SDGs जो है इनको टच करता है बिल्डिंग फॉर कम्युनिटीज, जो WGBC का इससे भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मुझे लगा मेरी आवाज जा रही है। तो नेक्स्ट इज बिल्डिंग फॉर द प्लैनेट एंड बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी। इसके आगे भी बिल्डिंग फॉर इकोनॉमिक्स। हम जो सस्टेनेबिलिटी का जो हम when we talk about the sustainability, there's a 3 people, planet and prosperity. Prosperity is equally important. Economics जो है वो गाइड करती है, वही आपको सैलरीज देगी बाद में जब आप कॉलेज से बाहर निकल के प्रोफेशनली काम करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, the whole message I want to give it to the students, architecture students और engineering students is please go beyond curriculum। जो आपके करिकुलम में बताया जा रहा है, करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स है, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशन है, जो आने वाले समय में हिंदुस्तान में क्या काम होने वाला है और वहाँ पे इंजीनियरिंग कहाँ जाने वाली है, आप प्लीज उसमें एक्सप्लोर करिए। आपको बहुत अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज और बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ अच्छा करने को मिलेगा। So it's time to put people back at the heart of built environment. The built environment is part of challenge and part of the solution. This is my end message, and I believe अभी दिनेश सर आपके साथ बात करेंगे, and we will come back for the question and answer session also for you.
तो उस समय आपके कोई भी सवाल होंगे तो हम आपको उनको जवाब देने को तैयार हैं। और जब ये सेशन खत्म हो जाएगा हम नीचे भी अवेलेबल होंगे, अगर कोई स्टूडेंट 1-to-1 में भी मुझसे कोई बात करना चाहे आप। थैंक यू। Thank you very much. Thank you for inviting me. PJMT, Dr. Premchand Memorial Trust. सर ने काफी अच्छा बताया, आपने 5 मिनट का वीडियो भी देखा। डॉक्टर प्रेमचंद कौन है? मैं आपको बस एक बात बोल सकता हूँ, मेरा 2005 में पहली बार उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था। 2008 में मेरा फर्स्ट 1-to-1 डिनर हुआ था, एंड दैट डिनर चेंज माय लाइफ। वो किड्स के लिए ना इतने ज्यादा, बच्चों के लिए इतने ज्यादा पॉजिटिव थे, मतलब इतने ज्यादा पैशनेट थे। वो मेरे को पर्सनल चिट्ठियां लिखा करते थे सर। मैंने ट्रेन में आपको बात बताई नहीं है, एवरी टाइम व्हेनेवर ही विल राइट मी अ लेटर इन हिज ओन हैंडराइटिंग, ही विल आस्क अबाउट माय सन्स, कौन सी क्लास में गया, कैसा कर रहा है, दिस एंड दैट। ही विल बी गाइडिंग मी लाइक ही वाज द ग्रैंडफादर ऑफ माय किड्स। और जब मेरे पास मेरे कोलीग ने, एक्स कोलीग ने बोला कि आपको दिनेश, कैन यू टेक आउट सम टाइम एंड गो टू टॉक ऑन PJMT चैप्टर, आई सेड यस आई विल गो। फ्रेंड नोट माय प्रेजेंटेशन। अच्छा, कोई बताएगा कि जब भी आप लोग यंग लड़के हो, लड़कियां हो, यहाँ पर आप आते हो, और मेरे ख्याल से PJMT से या कहीं ना कहीं से आपके लिए कभी ना कभी कोई ना कोई लेक्चर होते रहते होंगे, करेक्ट? और उसमें हमारे जैसे बिना बालों वाले लोग ज्यादातर आते हैं, या सफेद बालों वाले, राइट? एनी आइडिया व्हाई? कोई यस? मेरे ख्याल से मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि बच्चे अभी भी गुफ्तगू में लगे हुए। मेरे ख्याल से सारे ग्रुपिज्म के हिसाब से बैठते हैं। सो एनी हाउ, आज प्रैक्टिस करेंगे बस एक बार, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम, ओनली मैंने आपका 1 घंटा लिया है। बट मेरे को आप ये जरूर बताना, हाउ डिड यू फील अबाउट इट? यू जस्ट हैव टू स्टैंड, शेक हैंड विद योर फ्रेंड and just say, hey, you are wonderful, extraordinary, and my dearest friends. Can we do that? Please, just a minute, please. Just stand up, shake hands with your friend, say, you are wonderful, you are extraordinary, and the dearest friend. कुछ एनर्जी आई? बैक बेंचर्स अभी भी वैसे ही बैठे हैं, राइट? एनीवे, लेट्स कैरी ऑन। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम लोग who has gray hairs, who have white hair, or who doesn't have hair at all, मजाक के लिए बहुत अच्छी स्लाइड है, but it has got a deep meaning. हम लोग आपके पास अपना एक्सपीरियंस बांटने आते हैं। जैसे नारायण साहब ने बोला कि हमारे को स्टूडेंट्स चाहिए, इंटर्न्स चाहिए, who has got some knowledge about it. Why? Because we have lived our life. And जब तक हमारे पास वो चीज, जब तक हमने सीखी, हम लोग रिटायर हो गए। So एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस वो एक ऐसी कंघी है जो गंजा होने के बाद मिलती है। This has got a very deep meaning. आज नारायण साहब टाइम निकाल के आए हैं, प्रोफेसर्स ने अपना टाइम निकाला है, आपने टाइम निकाला है, तो टेक इट सीरियसली। अगर हमारे जैसे लोग आपसे इंटरेक्शन करते हैं तो हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहते हैं कि कल को जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आओ, जीरो से स्टार्ट ना करके एक स्टेपिंग स्टोन आपको मिले, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 से स्टार्ट करो, एंड यू कैन गो रीच हाइट्स, एंड दैट विल हेल्प टू हैव अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड इंडिया. So it has got a deep meaning, and whenever any faculty, any industry veteran is coming to you,
Please take him seriously and keep enjoying. So let's go further, guys. जब भी हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरे पास 35 मिनट्स हैं। जब भी हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, हमने सोचा भैया मेरी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब लग गई या मेरी कंप्यूटर साइंस में जॉब लग गई। 4 साल बाद मैं 8 CGPA के साथ निकलूंगा, बहुत अच्छी जॉब लगेगी, टाटा कंसल्टिंग में लगेगी, TCS में लगेगी, या मेरे को गूगल ले जाएगी, या मेरे को X कंपनी ले जाएगी, Y कंपनी ले जाएगी। सो आई हैव अ गोल, राइट? सबने ऐसे गोल सेट करे हुए? नो यार, ना यस ना नो, ऐसा कैसे हो सकता है? सो गोल सेट क्लियर नहीं किए। एंड हाउ डज गोल लुक लाइक? स्ट्रेट लाइन, कि मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, I will start from one end and I will reach my destination. That is my goal. मैं वहां तक पहुंचाऊंगा, करेक्ट? सोचते तो यही है जब हम गोल सेट करते हैं, बट होता क्या है? होता ये है कि सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, पिछले सेमेस्टर में मेरे सिर्फ 5 CGPA आई, अब की बार मैं पढ़ूंगा और अब की बार 9 CGPA लेके आके एवरेज 7.5 पे खत्म कर दूंगा। और जब सेकंड सेमेस्टर का भी रिजल्ट आता है, नेक्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, फिर वही ढाल के 3 पार, राइट? सो जहां पर जाना था उससे दूर चले गए। होता है, मोस्टली के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी सेम कॉलेज, ऐसे ही मैं भी आपकी तरह ही बैठ के पढ़ा हूं, हमारे साथ भी हुआ। बट एक्चुअल में ये वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो भी zigzag लाइन होती है। एक बार लगेगा मैं नजदीक पहुंच गया, एक बार लगेगा दूर चला गया, एक बार ये लगेगा, ये रियलाइजेशन आता है। बट एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन, you will be deflected from your focus. अब आप मेरे को बताओ कि आपके पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स, क्लासमेट्स, कोलीग्स, मैनेजर्स, यहाँ पर तो मैनेजर्स नहीं होंगे बट प्रोफेसर्स के लिए तो मैनेजर्स होंगे यहाँ पर, इनकी डांट पड़ी होगी, कौशल करते होंगे, वार्निंग देते होंगे, धमकाते होंगे, कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, और हम हमेशा उनके ऊपर गुस्सा झाड़ देते हैं पीछे से। अरे यार फालतू में पकाता रहता है, खुद को तो आता है नहीं, ओल्ड स्कूल से आया हुआ बंदा है, आज की डेट में पता नहीं क्या से क्या हो गया, राइट? और वो हम उस आदमी को सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, खास तौर पे अपने माँ बाप। ये 18 से 22 साल की उम्र ऐसी है जहां पर अपना फादर दुश्मन लगता है और टीचर्स। चलो अच्छी बात है, कुछ बच्चों की नजरें गर्दन जो है नो में घूम रही है। आई एम रियली थैंकफुल टू दैट कि अगर वो अपने पेरेंट्स को अपना गॉड मानते हैं, अच्छी बात है। बट डांट पड़ती है, डांटते हैं, कॉशन करते हैं, टीचर्स टेस्ट लेते हैं, 0 मार्किंग करेंगे, अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो अटेंडेंस शॉर्ट करेंगे, डिटेन करेंगे, व्हाटएवर, राइट? वो क्यों करते हैं? थिंक अबाउट इट। अगर मेरे को किसी डांट पड़ी, मैं एक डिफ्लेक्टेड एंगल पे चल पड़ा, मेरा गोल ये था और मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा और मेरे को डांट पड़ी या मेरे को किसी ने करेक्ट किया, तो मेरे को यहां पर किया, उसने सेमेस्टर के एंड तक वेट नहीं करा, तो मैं जो यहाँ पर 15 किलोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया, अगर मैं मेजर करूं इसको कि मेरे को 300 किलोमीटर चलना था, 15 किलोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया, तो अब अगर मेरे को कोई यहाँ पर करेक्ट कर देता है तो मैं सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर डिफ्लेक्ट होऊंगा। मैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड कम होगा वापस मेरे गोल पे आने के बाद। Do you guys agree or not? Good. So this is what I was trying to show. Here my distance I was supposed to travel 300 kilometers. Now I was corrected here. I traveled only a little bit, then came back, and I would have traveled lesser distance compared to going up to that far. So जब भी आपका फोकस डगमगाने लगे,
जब भी आपको लगे हम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जब भी मेरा टीचर, मेरे पेरेंट्स, मेरे क्लासमेट, मेरे कोलीग्स, मेरे मैनेजर्स कभी भी मेरे को अगर टोक रहे हैं, दे आर डूइंग गुड फॉर यू। और अगर वो नहीं टोक रहे तो क्या करूं? क्या मैं सही रास्ते पे हूं? ये मैं पसंद नहीं करता, और मैंने देखा एक्स पर्सन जो है वो गलत रास्ते में जा रहा है, बट मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं तो नहीं करूंगा। So that was number one answer, to stay focused. Don't get distracted with any kind of objections, cautions raised by your parents and teachers and friends. But अगर कोई feedback नहीं दे रहा है, then you go yourself. You go yourself. You know that अगर आपको कोई correct नहीं करेगा, तो आप problem में आ सकते हो. You can be deflected from your goal, and asking for feedback can help you to make sure you are back on track. Agree करते हो सारे? थोड़ा silence हो गया अभी. Okay. So objections, tests, cautions, advice by parents, teachers, supervisor, colleagues, friends will always make sure you are back on track whenever you are deflecting. And that's the key to remain focused. ये picture याद रख लेना बस. ये लास्ट वाली जो पिक्चर है, ये याद रख लेना. कभी भी दिक्कत हो, लुक एट दिस. कोई कुछ बोले आपको, लुक एट दिस. समथिंग इज गुड फॉर यू. कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा है यहाँ पर. एग्री? थैंक यू. सो जितना जल्दी पता लगेगा उतनी जल्दी रिकवरी फास्ट होगी. सो वी शुड अप्रिशिएट इट. Water. Let's go on to the professional line now. So qualification जो है, हमारी qualification, जैसे आपके डायरेक्टर सर मलिक साहब ने बोला कि बच्चे सोचते हैं कि मैं मैकेनिकल में गया, मैं सिविल में गया, मेरे लिए यही स्कोप बचा है. No. Just think over it. Qualification just एक पासपोर्ट है. अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, उस पे आपने जाना है बाहर, कहीं पे भी जाना है, तो आपको पासपोर्ट की जरूरत है. सेम वे क्वालिफिकेशन जो है आपकी, दैट इज अ पासपोर्ट टू गेट एन एंट्री इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन. बाकी आपका माइंडसेट, आपका स्किल्स, दैट विल टेक यू टू द हाइट्स. जैसे नारायण सर ने बताया, वो वैसे तो सिविल इंजीनियर हैं, बट अब वो एयर क्वालिटी में, so it is environmental engineering. Same way I am a mechanical engineer. Water की फील्ड की बात करते हैं, which is core environmental engineering, then civil engineering, then your chemical engineering, then थोड़ा बहुत बचता है तो फिर electrical and mechanical engineering. और आजकल AI का जमाना है, IT सॉफ्टवेयर का जमाना है, so software engineering सभी कुछ आ जाता है. जो चाहे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, चाहे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, एक बार मैं एक इंडस्ट्री में आया, I needed a degree, I needed a qualification to enter a particular field. After that, depending on my skills, sky is the limit. Agree guys? समझ में आ रहा है? Thank you. So water cycle, हमारे को वाटर साइकिल जो पढ़ाया गया कि भाई बादलों से बारिश होती है, वो पानी नदी नालों में आ जाता है, वो हम यूज करते हैं, फिर उसका वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, इट गोज बैक इनटू द स्काईज, अगेन बादलों से बारिश होती है. दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड. जनरली किसी को भी पूछोगे, किसी भी छोटे बच्चे को या बड़े बच्चे को, किसी को भी पूछोगे, दे विल से दिस इज द वाटर साइकिल. बट प्रोफेशनल, अगर हम अपनी डे टू डे रोजमर्रा की लाइफ, ये बोला जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होनी है वाटर पे होनी है, तो हमारे को वाटर साइकिल समझना बहुत जरूरी है. मेरा एक जो छोटा सा इंट्रो था, आई सेड आई लव टू टॉक ऑन द बेसिक्स. सो अभी हम अगले 15 मिनट 20 मिनट सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे. वी विल नॉट गो डीप इनटू इट. आपको अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन, या आप ये सेशन खत्म होने के बाद देन वी कैन टेक योर क्वेश्चंस. एंड संदीप सर है ही कि किस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए, ही कैन आल्सो हेल्प यू आउट.
So what is water cycle? Water cycle मेरा जो ये point number 1 है, that is not tap, it is raw water source. Raw water source can be rain, can be river, can be lake, can be nala, anything. Raw water source है, raw water source से मेरे ये ट्रांसपोर्ट पे आया, पंप. ये ट्रांसपोर्ट वाटर मैंने पंप को, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया. ये भी ग्रेविटी से भी हो सकता है या मैं पंप भी यूज कर सकता हूं. सो आई ट्रांसपोर्टेड वाटर फ्रॉम रॉ वाटर सोर्स टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. जो लगे होते हैं फिल्टर, सॉफ्टनर, या घरों में जो हमारे आरओ लगे होते हैं, हम इनको WTP बोलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. घरों में जो भी पानी आ रहा है आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होकर आ रहा है. वो पानी ट्रीट होकर अगेन पंप से या ग्रेविटी से या तो ये फैक्ट्री को जाएगा या फिर ये घरों को जाएगा, यूजर एरिया को जाएगा, या फिर मॉल्स को जाएगा या बिल्डिंग्स को जाएगा, जिसको भी जाएगा, मतलब यूजर एरिया में जाएगा. यूजर एरिया के बाद ये पानी फिर गंदा हो जाता है. अभी हम वाटर एफिशिएंसी, आपने कई बार वर्ड सुना होगा, वाटर एफिशिएंसी की बात करते हैं कि भाई आप जब शेव कर रहे हो या ब्रश कर रहे हो, आप टैप बंद कर दो. वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, जितना भी पानी हमारे घरों में सप्लाई होता है 80 से 90% पानी वेस्ट हो जाता है. जब हम वेस्ट वाटर की बात करते हैं, लोग सिर्फ ये सोचते हैं सीवर का पानी, टॉयलेट का पानी. नहीं, घर में जितना भी पानी आया जो इवेपोरेट नहीं हुआ, उसके बाद का पानी जितना भी है सारा वेस्ट हो जाता है, या तो सीवर में, टॉयलेट में, या कपड़े धोने में, या बर्तन धोने में, या पोंछा लगाने में. 135 लीटर के हिसाब से घरों में पानी सप्लाई होता है, और उस कैलकुलेशन के बेस पे मिनिमम 108 लीटर पानी वेस्ट होता है हर पर्सन का. अगर मैं हूं तो मैं 108 लीटर, दिनेश अगर इस प्लैनेट पे, इस कंट्री में रहता है, तो दिनेश हर रोज 108 लीटर पानी वेस्ट करता है. तो जैसे बोलते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम. कैन वी डू समथिंग कि मैं 108 लीटर को 100 लीटर पे ले आऊं, 90 लीटर पे ले आऊं, 80 लीटर पे ले आऊं? टेक्नोलॉजीज हैं, साथ में मेरी विल पावर भी होनी चाहिए टू डू दैट. ओके, सो पानी वेस्ट हुआ, अगेन इसको बाय ग्रेविटी या पंप्स यूज करके वी विल टेक इट टू ETP, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और वी कैन कॉल इट STP, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, डिपेंडिंग ऑन कि इसमें किस तरह की इंप्योरिटीज है. मैं वो इंप्योरिटीज की क्लासिफिकेशन में नहीं आऊंगा, बट इट विल गो एज पर कि इसमें किस तरह की इंप्योरिटी है, उस तरह के प्लांट में जाएगा. उस तरह के प्लांट में जाने के बाद या तो मैं इसको नेचुरल बॉडी डिस्चार्ज में डाल दूंगा, रिवर नाला में डाल दूंगा, या मैं इसको रिसाइकल करके वापस यूज कर लूंगा. जैसे अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हो, हॉस्पिटल्स में रहते हो, उसी पानी को, जो पानी ट्रीट होके आता है, इसी को हम फ्लशिंग में दोबारा से यूज कर लेते हैं, गार्डनिंग में दोबारा यूज कर लेते हैं. और ये पानी इनफैक्ट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, मतलब नॉट टू माय कंपनी, एवरीबॉडी हैज ऑन प्लैनेट, वी हैव दिस टेक्नोलॉजी कि हम इस पानी को वापस से पीने लायक बना सकते हैं. बट हम पीते नहीं है बिकॉज़ ऑफ साइकोलॉजिकल रीजंस. ओके एवरीवन, पक्का? एनी क्वेश्चंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयर एंड वाटर, और हमारे पंच तत्व में भी पानी और वायु, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ. करेक्ट? अब वापस मेरे को रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है. कम ऑन, कनेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से. तो चैलेंजेस क्या हैं जो हम बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर हो सकती है थर्ड वाटर पे. deteriorating quality of urban water sources with respect to hardness, nitrates, fluoride, organics, reliance on expensive water sources, less than 30% of domestic wastewater. मतलब जैसे सबसे मेन पॉइंट जो थर्ड है, इंडिया में अगर हम 10,000 लीटर पानी वेस्ट करते हैं तो हमारे पास उसको ट्रीट करने की कैपेसिटी सिर्फ 3,000 लीटर की है. इसलिए हमारी गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं वो पॉल्यूटेड है, क्योंकि हमारे पास
जितना पानी गंदा करते हैं उस पानी को साफ करने की कैपेसिटी नहीं है। That's the reason our rivers are polluted। और यहाँ पर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम 108 लीटर पानी वेस्ट करते हैं, क्या मैं वैसे तो बात करता हूँ मेरी गंगा साफ होनी चाहिए, मेरी यमुना साफ होनी चाहिए, मेरी नर्मदा साफ होनी चाहिए, पर मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है एज अ स्टूडेंट, एज अ रेजिडेंट, एज अ इंडिविजुअल। मैं हो सकता है मैं वाटर इंडस्ट्री से ना हूँ, बट एज अ इंडिविजुअल मेरा और भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है ना। ओके, सो who are responsible in India, this will help you guys to choose your career also। आपके ये प्रोफेशनल हम बात कर रहे हैं वाटर साइकिल की, बट अगर आप वाटर साइकिल में आना चाहते हो, वाटर अपने कंट्री को वापस कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, डेफिनेटली आप कहीं पर भी जाओगे टैक्स भरोगे तो कंट्री को वापस आप दे रहे हो। बट in addition to taxes, what additional you can give? So some of the areas like नारंग साहब ने चूज किया एयर क्वालिटी पे काम करने के लिए, मैंने चूज किया वाटर क्वालिटी पे काम करने के लिए, यतीन भाई साहब हैं, इन्होंने चूज किया कि ये सब चीजों को कोऑर्डिनेट करेंगे एंड ही विल मेक श्योर कि स्टूडेंट्स जो हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, उसके लिए बच्चों को अवेयर करा सकें। So everybody is contributing in its own way। So CPHEO ये एक नोडल एजेंसी है जो कि मैनुअल्स लिखती है, डिजाइन कोड लिखती है कि भाई पानी कैसे साफ होना चाहिए, पानी को मेरे को कैसे ट्रीट करना चाहिए। WTP जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था वहां पर भी, और जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है STP वहां पर भी, और ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सो दे राइट मैनुअल्स। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये आपने सुने होंगे नाम, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये आपने नाम सुने होंगे। ये लोग इंश्योर करते हैं, ये लोग ऐसे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोलती है भाई मेरे को नहीं पता, यहाँ पर ये रूल लागू हो जाना चाहिए, तो दे क्रिएट द रूल, दे क्रिएट द रूल। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज लाइक योर पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आपके रूल लागू कर दिए, अब पुलिस का काम है, पुलिस एनफोर्स करती है, चालान काट के इट मेक श्योर कि आप लोग रूल फॉलो करें। सो दैट इज द वर्क ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन तीनों को, CPHEO को, CPCB को, SPCB को और बाकी जो एजेंसीज हैं जो वाटर में डील करती है उनको बांध के रखती है। दिस इज आल्सो लाइक अ सुप्रीम कोर्ट। देन ULBs, आपके यूपी में यूपी जल निगम है, यूपी जल निगम इज द जल बोर्ड, फिर आपका कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सो दीज काइंड ऑफ एजेंसीज दे आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग यू क्लीन वाटर एंड टू हेल्प यू टू मेक श्योर कि आपका रॉ वाटर सोर्सेज जो है, नदी नाले तालाब, वो सारे साफ रहें। फंडिंग एजेंसीज, अब ये सारा काम करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, सो ये पैसा या तो वर्ल्ड बैंक से आएगा या फिर जापान से आएगा या एशियन डेवलपमेंट बैंक से आएगा। देन वी हैव EPC कॉन्ट्रैक्टर्स। काम कौन करेगा? मैं अपनी ठेकेदारी कंपनी भी खोल सकता हूँ और मैं उसमें काम कर सकता हूँ, राइट। देन आई हैव टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, कि मैं प्योर इंजीनियरिंग दूंगा मैं कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या मैं अपने इंजीनियरिंग स्किल्स इसमें यूज कर सकता हूँ, वो सारे काम करके। सो दीज आर द एवेन्यूज, ये नोडल एजेंसीज हैं जो इसमें काम करती हैं। यू एज स्टूडेंट्स कैन थिंक ऑफ मेकिंग योर करियर इररिस्पेक्टिव आप किस ब्रांच में हैं। आप मैकेनिकल से हो सकते हैं, सिविल से हो सकते हैं, केमिकल से हो सकते हैं, AI से हो सकते हैं, CSE से हो सकते हैं, जिस भी ब्रांच में हैं, you can choose to make your career in these kind of fields. And it is not true only for water, it is true for air also. Air में भी आपके ऐसी एजेंसीज होंगी। Okay, so what I was talking about CPHEO, Central Public Health Environmental Engineering Organization. आप लोग ये जो टर्म्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं, I will not detail these parameters. आपके केमिकल इंजीनियरिंग में या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में या सिविल इंजीनियरिंग में 101% पढ़ाए जा रहे होंगे।
या आप इनको गूगल भी कर सकते हो। एंड टू मेक श्योर कि मेरा पानी साफ हो, ये मेरी गाइडलाइंस होती है कि मेरे को इस डिग्री तक पानी साफ करना है। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब बात आती है, वो तो होगी मेरी नेचुरल डिस्चार्ज की। अब रीयूज करना क्यों जरूरी है, पानी साफ करना क्यों जरूरी है? एक तो हमने वाटर बोर्न डिसीज तो सुनी थी। अब कानपुर है, कानपुर देहात भी बगल में लगता है, सबने कंट्री साइड विजिट करी हुई, खेतों वेतों की तरफ गए होंगे। गए हो आप लोग, नहीं गए हो? तो कोई नदी नाला, खास तौर पे तालाब या झोड़ जो होता है जहां पर पानी चलता नहीं है, वहां आपने देखा होगा ऊपर ग्रीन लेयर जम जाती है एल्गी। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट क्या होता है? सॉरी, गुड। और सो you are half in there, सन रेज जाने नहीं देती और साथ में ऑक्सीजन नहीं आने देती, और धीरे धीरे उस पानी के अंदर जो एक्वाकल्चर है, फिश है या जो है, वो धीरे धीरे दे डाई, और धीरे धीरे आपका तालाब भी सूख जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। तो हमारा जो सीवेज रहता है उसमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर एल्गियल ग्रोथ व्हिच इज ग्रीन कलर, और इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं एसटीपी लगाऊं, उसमें मैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस निकाल दूं। जस्ट दिस वाज एन एग्जांपल कि जो पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, बीओडी का क्या इंपॉर्टेंस है, टीएसएस का इंपॉर्टेंस क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फीकल कॉलिफॉर्म, इनके why these things are responsible, why should I be looking at it? Okay, so reuse में I can use, मेरा अगर मैं पानी साफ ही नहीं करता तो मैं इस पानी को यूज ही नहीं कर सकता। डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, कि मैं किस तरह का ट्रीटमेंट मैं दे रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रीटमेंट दूं, कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा और अच्छा ट्रीटमेंट दूं, मैं इसको इरिगेशन के लिए यूज कर सकता हूँ, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। बट अगर मेरे को फ्लशिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए चाहिए तो मेरे को किस तरह का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो दीज आर these 3 डिग्रीज ऑफ ट्रीटमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। सो आई जस्ट skip this slide, I have explained enough. So जितना मैंने बोला, I just explain you with this flow diagram. मेरा ये जो मेरा एरिया है, कोस्ट क्लीन, फाइन क्लीन, ग्रेट, एनॉक्सिक जोन, दिस इज कॉल्ड टिल ग्रेट, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये मेरे पत्थर कंकड़ ये साफ कर देता है, दैट इज प्राइमरी। मेरा एनॉक्सिक जोन, एसपीआर टैंक, ये मेरा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसके बाद मैं उसमें से जो बैक्टीरिया रह जाते हैं, मैं अपना बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए क्लोरीन टैंक लगाता हूं, या यूवी सिस्टम दूंगा, या ओजोनेशन सिस्टम दूंगा। यहाँ पर मेरा बाई प्रोडक्ट निकलेगी, स्लज वगैरह निकलेगा, स्लज को मैं निकाल के स्लज को डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। और अगर मेरे को यहाँ के बाद अगर मैं पानी ले रहा हूँ तो कोई यूज नहीं है। यहाँ के बाद मैं पानी ले रहा हूँ तो मैं खेती के लिए नदी नालों में डाल सकता हूँ। और अगर मेरे को पानी गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्लशिंग या नहाने के लिए चाहिए तो मेरा ये टर्शियरी ट्रीटमेंट है। आई विल हैव अ सैंड फिल्टर, आई हैव अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यूएफ परमिएट, रिवर्स ऑस्मोसिस, इवन यूजिंग आरओ, हियर आई कैन मेक श्योर कि मैं इसको पीने लायक भी बनाऊं। सो दीज आर द 3 डिग्रीज ऑफ ट्रीटमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट, एंड दिस इज अ टिपिकल flow diagram of wastewater treatment plant. I tried to explain you what is water cycle, why it is important to treat your wastewater. Third World War will be happening on water. Mind it, what as a student, as a resident, what I can do for my mother nature. I tried to explain you that, and then what does a
wastewater treatment plant looks like. So, just one more slide. Depending on, as I said, primary, secondary, tertiary, we can classify, because आप engineering के student हो, I thought let me tell you about this slide also. There are 3 types of treatment: physical, chemical, and biological. And all the treatment plants are combination of these 3 classification. शुरू में जो हमने grit removal देखा, that was physical. जो मैंने chlorine देखा, जो मैंने ultrafiltration देखा, physical. Chlorine was chemical. मेरे को कुछ और भी chemical dose करने पड़ जाते हैं, that is chemical. So those are mentioned over here. And biological, secondary treatment. So it is a combination of physio, chemical and biological reaction. और अब आप, you can imagine what I said that earlier, कि आप चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे केमिकल इंजीनियर हो, चाहे सिविल इंजीनियर हो, चाहे आप एआई इंजीनियर हो, whatever branch you are from, qualification is just a passport and you can choose which industry you want to get into, right? Okay. So I just skip this because I have already discussed, and that's all about my presentation. Any questions, guys? अगर आपने मेरी presentation enjoy करी तो एक और यार एक और अच्छी से ताली बजा दो। आपकी तरह हम भी बच्चे हैं। मेरे बेटे ने इसी साल इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया है। आई कैन रिलेट यू गाइस लाइक माय ऑल, यू ऑल आर लाइक माय किड्स। जब बच्चे अच्छा करते हैं, माँ बाप को बहुत खुशी होती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। Any question, guys? Yeah. And आप वाटर से रिलेट मत करना। जैसे मैंने फोकस की बात करी थी, या कुछ और आपको लगता है, you want to discuss those things, you can discuss those as well. और अगर क्वेश्चन करना है, you can question as well. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीटर तो लगे, पर मीटर फॉलो कौन करता है? और ये दिस इज समथिंग, कुछ चीजें होती हैं which are in our control and which are not in our control. As an academician, as an engineering consultant, as we belong to the industry, हम लोग गवर्नमेंट को 101% रिकमेंड करते हैं मीटरिंग नहीं, स्मार्ट मीटरिंग के लिए भी, कि कोई टैंपर ना कर पाए मीटर से। पर ये पॉलिटिकल लेवल का क्वेश्चन है। विल सबकी है बेटा, विल सबकी है, क्योंकि पानी जो है ना, पानी एक स्कैर्स कमोडिटी है और बहुत दिक्कत होने वाली है फ्यूचर में। इसको एड्रेस तो करना पड़ेगा, बट दिस कैन बी सॉर्टेड आउट। ये मीटरिंग वाला क्वेश्चन जो है, ये डेफिनेटली एग्जीक्यूशन एजेंसीज के हाथ में। बाकी नारायण सर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वह रिस्पेक्ट फॉर वाटर, कहीं ना कहीं हम जहाँ रह रहे हैं, कानपुर आप लोग रह रहे हैं, और नॉर्दर्न इंडिया, भोपाल से ऊपर आप समझ लीजिए, यहाँ पे हमें कभी वाटर को रिस्पेक्ट करना समझाया ही नहीं। हम डाउन साउथ भी काम करते हैं, मैं चेन्नई भी जाता हूँ, हम पैन इंडिया काम करते हैं। यू गो डाउन साउथ, वहाँ पे इनकी पानी की कमी है। वहाँ 2 स्टेट पानी के लिए लड़ रहे हैं, जो आपने सुना होगा कावेरी विवाद के ऊपर। वहाँ पे पानी की रिस्पेक्ट है। मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। 40 पैसे लीटर पानी खरीदा जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। आप समझिए कि 12,000 लीटर का जो टैंकर है वो 4800 रुपए का आता है, चेन्नई में 5,000 रुपए का आता है। हमारे को यहाँ पानी फ्री मिलता है। तो हमें कहीं ना कहीं एक जो पानी को रिस्पेक्ट करना चाहिए ना, वो हमें सिखाया नहीं गया, या हम भूल गए उस रिस्पेक्ट को। पहले तो हम मतलब वायु, अग्नि, जिन 5 भूतों से शरीर बनाया, उसको हम पूजा करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। एज ए इंजीनियर मैं ये बार बार कहता हूँ कि हम
एक अगर इंजीनियर है और एक देशभक्त इंजीनियर है, तो हमारे को ये एज ए इंजीनियर हमारा फर्ज बनता है कि हम एनर्जी एफिशिएंट हो। कहीं पे भी क्या लाइट फालतू जल रही है हमें खुद बंद करना चाहिए। स्कूल कॉलेज के अंदर आप अगर आपको लगता है आपकी क्लासरूम की लाइट चल रही है और ज़रूरत नहीं है तो यू हैव टू सेव दैट एनर्जी। पानी वाटर को कैसे सेव किया जा सकता है। देशभक्त होना, एक इंजीनियर के लिए देशभक्त होना जनगण मन पे खड़ा होकर सलाम करना नहीं होता। आपको अपने देश की जो प्राकृतिक जो हमारी है संपदा है या नेचुरल रिसोर्सेज है, इनके साथ कैसे काम करना है। सर ने भी आपको बताया एयर है, मैं एयर क्वालिटी पे काम करता हूँ, हमें वायु कैसे कम से कम हम दूषित कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। इंजीनियरिंग माइंड इज अबाउट दैट। इंजीनियरिंग खाली कॉलेज की डिग्री इंजीनियरिंग नहीं है। आप इंजीनियरिंग इज अबाउट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट day after day, every day in your life. So that's a real definition of the engineering. Thanks for he has more questions. So एक नेशनल वाटर एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने अब बोरवेल जो है बैन कर दिए। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ, गुड़गांव के पास एक गांव है, वहाँ मेरी ससुराल भी है। वहाँ पर कभी भी बोरवेल रोकने जाते हैं या बिजली का कनेक्शन जिन्होंने जबरदस्ती लगा रखा होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली में डंडे लेके आ जाते हैं एक्सीएम को बीटने के लिए। एक्चुअल फैक्ट है ये एक्चुअल फैक्ट है। अदरवाइज अगर आप पॉलिसी की बात करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी की बात करो, ये मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। बेटे ने ना बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और रियलिटी में बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ना बच्चे के लिए ताली बजानी चाहिए। बट ये एक फैक्ट है। पहला फैक्ट तो ये है कि जहां पर भी ये नेशनल वाटर एजेंसी है, इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें रूल्स लेके आए हुए हैं। ये वही वाली बात है कि यार हेलमेट लगाना जरूरी है, मेरे को भी पता है हेलमेट लगाना जरूरी है, पुलिस वालों को भी लगाना जरूरी है, बट हेलमेट नहीं लगाते। ये सिर्फ सरकार के ऊपर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ये हमारी भी रिस्पांसिबिलिटी है और ये रिस्पांसिबिलिटी हमारे को समझनी पड़ेगी। सरकार ने बोरवेल बैन किए हुए हैं, 7-8 साल पहले पॉलिसी निकली थी। आपके ऊपर फाइन लगेगा अगर आपने बोरवेल किया तो, बट फिर भी हम करते हैं। दादागिरी दिखाओ या मेरा चाचा विधायक है, मेरा ताया जी विधायक है, मोहन विधायक है, बट हम करते हैं। Right? So बेटा you got the answer. So policies हैं, ऐसा नहीं है पॉलिसीज नहीं है। वही जो मैंने आपको शुरू में बताया, CPHO, NGT, आपका वर्ल्ड बैंक, ये सभी की पॉलिसी है। एक बैंक है जाइका, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एसोसिएशन, सबसे सस्ता लोन देता है हिंदुस्तान को वो, और काफी सारे जो वाटर के प्रोजेक्ट आते हैं जाइका की फंडिंग है। और जाइका ये कहता है अगर आपने ये सारे रूल फॉलो नहीं करे तो मैं लोन नहीं दूंगा। बट हम इंडियंस हैं, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं, ये भी फैक्ट है। पर हमारे को अगर हम सच्चे देश होते हैं, सच्ची बात बोल रहा हूँ बेटे, अगर हम रियलिटी में इफ वी आर ट्रू रेजिडेंट, ट्रू सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी मस्ट मेक श्योर कि हम अपने पार्ट पे करें। इसलिए मैंने वहां से बोला था चैरिटी बिगिंस एट होम। 108 लीटर पानी वेस्ट करता हूँ थ्योरेटिकली, हो सकता है 150 लीटर भी करता हूँ। 108 लीटर को मैं कैसे कम लेके आ सकता हूँ? पॉलिसीज आर देयर, आप करोगे गवर्नमेंट 2 स्टेप आगे चलेगी, और पीजेएमटी जैसी ट्रस्ट आपको हेल्प करेंगे। दे कैन कनेक्ट यू। अगर आपके पास कोई ब्रिलियंट आइडिया है, रीच आउट टू यतेंद्र भाई, रीच आउट टू नारायण सर, एंड दे विल मेक श्योर कि आपका आइडिया जो है राइट चैनल, राइट अथॉरिटी के पास पहुंचे। दे विल मेक श्योर दैट। Okay? Thank you.